Good morning, everyone. Myself, Dr. Anshu Jain, and I'm going to take your cost accounting lectures. And during the lecture, in case you find any kind of problem, then let me know via question answer and just type your question in Q&A. I'll try to sort your queries. Okay, now when we are supposed to go for cost accounting concept, cost accounting के syllabus में you have 5 units in total to be studied. The first unit is basically the introduction part, in which you have to study the meaning, scope, objectives, and advantages of cost accounting. What is the difference between cost accounting and financial accounting? Different kind of cost concepts and classifications, overview of cost sheet, that is the practical portion in that first unit. Then in second unit you have to cover the different kind of elements of costing, which mainly covers the material and labor cost. Third unit is talking of the overheads, where we are supposed to study the allocation and apportionment or absorption of overheads. Overheads are basically the indirect expenses which the company is incurring. The fourth unit is the methods of costing, in which you have different methods or the different techniques we use in the cost accounting to calculate cost. And the last one is the cost accounting bookkeeping systems, where we have to study the integral and non-integral systems and cost accounting records. You have to meeting responded by Dr. One book you can refer. Just wait a minute. I'll just study material which you receive from the SOL, and that is there on the website of SOL also. You can go through these books, and you can refer to the book by Dr. N.N. Arora. Now, coming to the concept, बेसिकली वी हैव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा हुआ है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फर्स्ट सेकेंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. अकाउंटिंग को हम जब जनरलाइज कर देते हैं तो अकाउंटिंग इन जनरल मीन्स दैट यू आर रिकॉर्डिंग समथिंग, you are classifying something, or analyzing the results you have of that recording of the transactions. And when we talk of the transactions, they are basically the business transactions or the transactions which can be expressed into monetary terms. ये हमने financial accounting में पढ़ा. Accounts in general हम बात कर रहे हैं, तो उसमें आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप बना रहे हो, जिसमें आपने बिजनेस के जो अलग अलग ट्रांजेक्शन्स हैं उनको आपने रिकॉर्ड किया है फॉर सम और द अदर पर्पस, एंड यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ नीड्स, यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स एज पर द यूजर ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एक वो सिस्टम है जहाँ अलग अलग कंपोनेंट्स कंबाइन हो जाते हैं और आपको सारी वो एक सिस्टम के थ्रू इंफॉर्मेशन देते हैं विच इज़ रिलेटेड टू द अकाउंट्स, जहाँ आपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया हुआ है. तो आप एक इंफॉर्मेशन सिस्टम वो सिस्टम है जहाँ आपके पास अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो आपको अलग अलग तरीके के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. वन थिंग, एंड द सेकेंड थिंग मे बी दैट इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी that can be shared by you. So in the accounting, in the information system, it's
system retrieve any kind of information. People who require different kind of information. When we talk of accounting information system, it is basically providing each and every kind of information which is related to business transactions. That means monetary transactions or monetary events, all the transactions which can be expressed in monetary terms. और वो एक सिस्टम जहां आपको ये सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वो आपके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है. कभी भी जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करेंगे तो एवरी टाइम द इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी सच लाइक वो रिलायबल भी होना चाहिए, टाइमली भी होना चाहिए, इट शुड बी एक्यूरेट, इट शुड बी इन सच अ वे कि जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए you can retrieve the information from that the system and you can use it. आप जितने भी हम interested parties की बात करते हैं, like if you have studied financial accounting in first semester, you have studied different kind of parties who have different interest in a particular company. एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए. वी हैव द डेटर्स, वी हैव क्रेडिटर्स, वी हैव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जहाँ से अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो उनको अलग तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए. क्रेडिटर्स अगर हैं तो उनको अलग तरीके की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है. अगर आप आपके डेटर्स की अगर हम बात करें तो उनके लिए अलग इंफॉर्मेशन, शेयर होल्डर्स हैं. तो एवरी वन हु हैज़ any stake in your company, he or she will be interested in some or the other information of your company. हर किसी इंटरेस्टेड पार्टी, हर किसी पार्टी जिसका स्टेक आपकी कंपनी में लगा हुआ है, उसके लिए अलग अलग ज़रूरतें हैं, इंफॉर्मेशन की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं वो कहाँ से पूरी होती हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से. And this is the only reason that you need to have a very reliable and a sound accounting information system, just because it is very important for every business to have a proper accounting information system, because basically you are serving or you are satisfying the needs of different stakeholders or different interested parties of your company. Now, when we talk of accounting, accounting is basically divided into three categories. No doubt और भी इसकी subdivisions हैं, but main हम three categories में इसको divide कर रहे हैं. One is financial accounting, which you have already done in your first semester. The second part is the cost accounting, and the third one is the management accounting. Financial accounting, you all are aware कि it's basically recording, classifying, summarizing the financial transactions of a particular time period, and you are analyzing or interpreting the results, and only those transactions which can be expressed into monetary terms, they are recorded. So financial accounting is the recording of business transactions in books of accounts so that final accounts can be prepared. Once you are preparing your journal entries, ledger posting is done, trial balance is created, and then you prepare your final accounts or financial statements. The second part of accounting is the cost accounting, which we have to do in this semester. It is basically an accounting process where the internal management is being helped with this concept of accounting in decision making. जो हमारा इंटरनल मैनेजमेंट है उनको सबको डिसीजंस लेने पड़ते हैं टाइम टू टाइम, अगेन एंड अगेन, एंड दिस कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेसिकली हेल्प्स देम in having different kind of in taking different decisions. The information which is being provided by this accounting, it basically acts as a managerial tool so that the business can utilize the available resources at the optimal level. Resources की हम बात करें तो we have some resources which are in scarcity, and every organization wants to have the optimum utilization of its available resources. So basically, to certain extent, cost accounting helps you in attaining that level. It helps you in utilizing the available resources at the most. Because in general, if I just sum up the cost accounting, basically you are calculating minute cost also. जो भी कंपनी पैसा खर्च कर रही है
कब कहाँ किस चीज़ पे पैसा खर्च किया है, पूरा डिटेल कंपनी कॉस्ट अकाउंटिंग में कैलकुलेट करती है। फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट टॉक ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो आप फाइनल अकाउंट्स बनाते रहे हैं, वेयर वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो उसकी कोई भी आइटम में आप डिटेल में हम नहीं जाते हैं, हमें पूरा एक्सपेंसेस पता होते हैं, हमें इनकम पता होती है, प्रॉफिट गेन्स पता होते हैं, लॉसेस पता होते हैं, और वो हम ट्रांसफर कर देते हैं एज पर द रूल्स एंड वी प्रिपेयर द अकाउंट्स। बट वी डोंट गो इन टू डेप्थ कि अगर मैंने मटीरियल का अमाउंट दिखाया है लेट से 4 लाख रुपए, तो वो मटीरियल पे 4 लाख रुपए किस वजह से लगे हैं, कहाँ कितना डिफरेंस आया है। अगर मैं कंपैरिजन भी कर रही हूँ 2 साल या 2 से ज़्यादा साल के फाइनल अकाउंट्स को, तो आई जस्ट कैन से कि लेट्स से 2017 18 और 18-19 के मेरे पास 2 साल के अकाउंट्स हैं और आई एम जस्ट मेकिंग द कंपैरिजन। तो आई कैन जस्ट से कि देयर इज अ डिफरेंस इन द प्रॉफिट फिगर, देयर इज अ डिफरेंस इन वन फिगर, कितना है वो भी बता सकते हैं, मगर वो क्यों है वो हम रीजन फाइनल अकाउंट से नहीं बता सकते। फॉर एग्जांपल फॉर द फर्स्ट ईयर द अमाउंट ऑफ टोटल वेजेस वाज लेट्स से 5 लाख रुपीस, and second year the cost of wages, the expenses incurred in terms of wages was let's say 8 lakh rupees. Just after having a view on your final accounts we can say कि पहले 5 लाख रुपए के मैंने मटेरियल खर्चा किया और सेकेंड ईयर में 8 लाख रुपए का मटेरियल परचेज किया, 3 लाख रुपए मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं। क्या हम कभी भी फाइनल अकाउंट्स को देखकर ये रीजन बता सकते हैं कि ये एक्चुअली 3 लाख रुपए का जो डिफरेंस है, इंक्रीज है, वो क्यों है? नहीं, हम सिर्फ ये बता पाते हैं कि ये 3 लाख रुपए का डिफरेंस है। पिछले साल मैंने 5 लाख रुपए खर्च किए थे मटेरियल पे, आज मैंने 8 लाख रुपए खर्च किए, एंड द रीजन कैन बी एनी रीजन, लाइक देयर मे बी अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, मार्केट में इन्फ्लेशन आ गई है जिसकी वजह से मुझे सेम यूनिट्स परचेज करने के लिए पैसे ज़्यादा देने पड़े। जो यूनिट्स मैं पहले 5 लाख पे परचेज कर पा रही थी, आज सिर्फ इन्फ्लेशनरी सिचुएशन होने की वजह से सेम यूनिट्स आई हैव टू परचेज फॉर 8 लाख रुपीज। सेम यूनिट्स है तो इसका मतलब प्रोडक्शन मेरी नहीं बढ़ी है, कॉस्ट बढ़ गई है सेम यूनिट्स के लिए। इट मे बी पॉसिबल द अदर रीजन which may be there for this increase of 3 lakh rupees, of the difference of 3 lakh rupees is कि मैंने बिजनेस में एक्सपेंशन कर दी। पहले मैं कुछ यूनिट्स बना रही थी जिसके लिए मुझे 5 लाख यूनिट्स की ज़रूरत थी, अब मैंने एक्सपेंशन कर दी है या मैं ओवर टाइम करा रही हूँ, तो उसके लिए प्रोडक्शन क्योंकि ज़्यादा हो रही है तो मुझे रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए, तो अब मैंने रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा परचेज किया है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स हैव ऑल्सो इंक्रीज्ड। तो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन नहीं थी, ओवर टाइम करा रही थी, मुझे ये लगा कि मैं मार्केट में प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर सकती हूँ, ऐसा टाइम है दैट द प्रोडक्ट I'm selling in the market is in demand right now and I can take advantage of it. तो मैंने क्या किया, प्रोडक्शन रॉ मटेरियल करके यूनिट्स बना रही थी, अब मैं नंबर ऑफ यूनिट्स जो मेरी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो ज़्यादा है, नंबर ऑफ आउटपुट जो है वो ज़्यादा है, तो उसकी वजह से रॉ मटेरियल की जो परचेज थी वो ज़्यादा हो गई। ये जो डिफरेंस है with reason we cannot say after just having a look on the final accounts. फाइनल अकाउंट्स को देखकर मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ कि ये डिफरेंस है, बट ये डिफरेंस क्यों है ये हम फाइनल अकाउंट्स को देख के नहीं बता सकते, ये हम बता पाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, एंड दिस इज द ओनली रीजन कॉस्ट अकाउंटिंग इंटीग्रल लेवल पे, इंटरनल लेवल पे बहुत ज़्यादा useful रहती है कंपनीज के लिए, because they have the minute detail of each and every cost or expenditure which has been incurred by the company during the financial year. और उसकी वजह से as I told you that it becomes or it helps the internal management and decision making, the information which is provided by the technique of the cost accounting is acts as a managerial tool, and the business can utilize the available resources optimally. जो उसमें वेस्टेज भी अगर हो रही है तो होगा क्या, कंपनी को पता चल जाएगा कि यहाँ पे रॉ मटेरियल वेस्ट हुआ या लेबर मेरी खाली बैठी हुई है, मुझे उसको खाली नहीं बिठाना क्योंकि मैं तो कॉस्ट इनकर मेरी हो ही रही है और लेबर खाली बैठी हुई है, तो आई जस्ट यू नो मेक
श्योर कि उन पे कंट्रोल करा जाए और लेबर आइडल ना बैठे। तो जो वेस्टेज ऑफ टाइम है उसको मिनिमाइज कर दिया जाए, अगर खत्म नहीं हो सकता तो एटलीस्ट मिनिमाइज किया जाए, और जितना उसको कंट्रोल कर सकते हैं हम उतना कंट्रोल करें वेस्टेज को हर लेवल पे, इस कॉस्ट को। तो बेसिकली जो एक कॉन्सेप्ट थियोरेटिकली निकल कर आया वो ये आया कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी टेक्निक है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको दे रहा है जहाँ पर इंटरनल मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और उसके अलावा में वो जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन वो लोग कर पाते हैं और कॉस्ट कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं और करते भी हैं। तो दे कैन ट्राई टू minimize the wastage of the cost as well as they just try to reduce the cost। क्यों? क्योंकि जब भी हम बिजनेस की बात करेंगे, बिजनेस का मेन जो मोटिव है, मेन पर्पस और मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ प्रॉफिट, अगर मैं उसको इक्वेशन के टर्म्स में बोलूँ तो इक्वेशन के टर्म्स में व्हाट एक्चुअली द प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अगर मैं उसको कर दूँ तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस का मतलब हो गया कि either I should increase the selling price or I should reduce the cost price to have more and more profit. So what I am doing is either I increase the selling price or reduce the cost price. कॉस्ट प्राइस कॉस्ट अकाउंटिंग का एक पार्ट है जहां हम लोगों ने कोशिश की अलग अलग टेक्निक्स को यूज करके, इम्बाइब करके कंपनी में, जिसकी हेल्प से we are trying to reduce the cost incurred by the company so that it has the positive impact on the profitability of the organization. I hope till now it's clear. Then the third category of accounting process is the management accounting, which is basically the extension, you can say it's the wider concept of the cost accounting concept only. It provides the information to the management so that they can have smooth functioning or efficient functioning in the organization. They can have proper planning, organizing, directing and controlling of all the operations and functioning which are going on in the organization. Now next, coming to the main concept of cost accounting. Cost accounting में सबसे पहले you should be aware of what do you mean by cost. Now cost in general, when we talk of the cost क्या है? Cost एक amount है जो हम कोई भी goods या services को एक्सचेंज करते हैं, लेते हैं या देते हैं, उसके अगेंस्ट में एक मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स या सर्विस। मैंने अगर कोई गुड्स परचेज किए या कोई सर्विसेज अवेल की, उसके बदले में मैंने पैसे दे दिए, तो वो मेरे लिए कॉस्ट है। तो इट्स बेसिकली द अमाउंट ऑफ मनी और मनी इज इक्विवेलेंट गिवन अप इन द एक्सचेंज फॉर गुड्स और सर्विसेज। तो मैंने कोई भी गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज करने के टाइम पर जो भी पैसे दिए या पैसे के बराबर की कोई चीज़ दे दी, that becomes the cost. Now the Chartered Institute of Management Accountant, London, they have defined the cost as the amount of expenditure which has been incurred on or attributable to specified thing or activity. In general, what we can say is the cost is the amount of expenditure which we have incurred to exchange some goods or services. In case we want to purchase any goods or services and against that we are making payment, that amount whatever we are paying, that becomes the expenditure. That means it's the cost we have incurred. Now from different perspectives, for a consumer cost means price. For management cost means expenditures incurred to manufacture a particular product. मैं अगर एज अ कंज्यूमर मार्केट में जा रही हूँ और कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज ले रही हूँ, उसके बदले में मैंने पैसे दिए, उसके बदले में जो मैंने पैसे दिए, तो दैट इज द प्राइस, दैट इज द सेलिंग प्राइस एट विच द सेलर इज सेलिंग द प्रोडक्ट टू मी एंड द बायर, एंड दैट विल बी द कॉस्ट जो मुझे उसके सेलिंग प्राइस के फॉर्म में मैं उसको देकर वो प्रोडक्ट या सर्विसेज ले रही हूँ। मैनेजमेंट के लिए जो कॉस्ट है, मैनेजमेंट के लिए जो कॉस्ट का मतलब है, इफ आई टॉक ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ और द व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज मैन्युफैक्चरिंग सम प्रोडक्ट, तो जो भी वो कॉस्ट इनकर कर रही हैं इन टोटलिटी टू मैन्युफैक्चर दैट प्रोडक्ट, और इफ दे आर रेंडरिंग सम सर्विसेज,
तो वो सर्विसेज को देने के लिए किसी भी कस्टमर को जितने भी खर्चे कंपनी उठा रही है, दैट विल बी दी कॉस्ट। तो कंज्यूमर के लिए सेलिंग प्राइस जो था, जो परचेजिंग प्राइस था मेरे लिए, सेलर के लिए सेलिंग प्राइस था, दैट बिकम्स दी कॉस्ट। मैनेजमेंट के लिए कॉस्ट वो खर्चा है a product is the cost, that is the expenditure which they have in a service, that becomes the cost. Costing is the process है जिसके कर रहे हैं कैलकुलेट costing. Different kind of rules, principles which governs the procedure to calculate. The final accounts में you have given rules, you have different concepts, you have standards of which you पूरा process है. Again, kind of principles which governs the whole process of when we calculate the cost, it is basically it's calculating the total cost, it is calculating the unit cost also. तो मैंने अगर 1000 यूनिट मैन्युफैक्चर की हैं तो मेरे पास दो कॉस्ट होंगी, एक टोटल कॉस्ट which I have incurred to manufacture 1000 units, that is total cost, and I will be calculating per unit cost also कि एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने में मुझे कॉस्ट कितनी इनकर मैं कर रही हूँ। उसका रीज़न है कि जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जो कैटेगरीज होती हैं, आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हुआ है, यू हैव स्टडीड वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट इज बेसिकली बाइफिकेटेड इनटू 3 कैटेगरीज, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट की मैं बात करूँ इन जनरल, तो फिक्स्ड कॉस्ट इज बेसिकली द कॉस्ट which is constant, which is same up to a certain level of output, and variable cost varies according to the number of units which are being manufactured. फिक्स्ड कॉस्ट में अगर मैं ये कहूँ कि 10,000 यूनिट्स तक के लिए आपको 1 लाख रुपए खर्च करने ही हैं, तो आप चाहे 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करिए, चाहे आप उससे कम कीजिए, आप 500 यूनिट्स करेंगे तो भी 1 लाख रुपए ही देने पड़ेंगे। टिल 10,000 यूनिट्स यू हैव टू बेयर 1 लाख रुपीज। उसके बाद एडिशनल कॉस्ट आ जाएगी, अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट और मैन्युफैक्चर करोगे तो उसके लिए आपको फिर वापस से एक फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख रुपए की इनकर करनी पड़ेगी। बेसिकली यू हैव the whole calculation of the total cost of manufacturing the product or rendering the services, as well as the per unit cost. Apart from this, costing provides the analysis of the expenditure in such a way that the management gets the complete idea about even the smallest item of cost. Normally final accounts में या इन जनरल कई बार होता है कि छोटी सी आइटम हम इग्नोर कर सकते हैं, कर देते हैं कभी कभी, लेकिन जब कॉस्टिंग टेक्निक पे आ जाओगे तो उसमें कितनी भी छोटा अमाउंट हो, it is not to be ignored, it has to be taken care of while calculating the total cost। क्योंकि जैसे कहा जाता है बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है, तो ऐसे ही हर कॉस्ट जो आप इनकर कर रहे हो वो टोटल कॉस्ट का एक हिस्सा बन रही है। तो यू हैव टू पुट फोकस ऑन इवन द स्मॉलेस्ट आइटम ऑफ द कॉस्ट। आई होप टिल नाउ इट्स क्लियर, or you have any doubt? Fluctuating. I hope now my voice is clear. I don't know, some technical problem may be there. One of you have asked me, ma'am, cost is only related to raw material. Cost is not related to raw material only. I have just taken the example to make you clear the concept कि अगर हम final accounts की बात करते हैं, final accounts में we are showing the cost, we are showing the expenses, losses, income and gain, and making the comparison to calculate the profit figure.
मैं अगर प्रॉफिट को जनरलाइज कर देती हूँ तो प्रॉफिट इज बेसिकली द सेल्स माइनस द सेलिंग प्राइस और सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट प्राइस। ये एक जनरल स्टेटमेंट है सिंपलेस्ट फॉर्म में। फाइनल अकाउंट्स में हम लोग फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम कंपैरिजन करते हैं विद डिफरेंट expenditures and losses with all the revenues and income or gains to calculate what amount of profit we have earned during the year, or in case the loss is incurred then the loss. The point is कि जो मैंने आपको ये समझाने के लिए रॉ मटेरियल वाला एग्जांपल लिया था, सिर्फ इसलिए लिया था कि आपको समझा सकूं कि फाइनल अकाउंट्स में we have only the different time periods, we can make comparison, but in depth we cannot go just because we don't have the details. जैसे कंपनी के लिए एनालिसिस के लिए आपको बोलूं तो आपको फाइनल अकाउंट्स अगर दे दिए जाएं 2 साल के, आई एम नॉट गोइंग इन दैट डेप्थ की 5 साल 10 साल, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आई एम टेकिंग दैट एग्जांपल। 2 साल के आपको फाइनल अकाउंट्स दिए गए हैं, उसमें ये पूछा गया है कि अब आप इसको कंपेयर करके बताइए। यू ऑल हैव डन फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स अगर आपको एक कंपनी के 2 साल के दे दिए जाएं तो आप कंपैरिजन क्या क्या करोगे? एसेट्स या लायबिलिटीज का कंपैरिजन कर सकते हो बैलेंस शीट को देखकर। ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप क्या कंपैरिजन कर सकते हो? प्रॉफिट पहले कितना था, अब कितना है, या लॉस पहले कितना था, अब कितना है। उसके अलावा में अगर मैं इंडिविजुअल आइटम्स उठा लूँ तो आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जाम्पल ऑफ रॉ मटीरियल, यू कैन हैव अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो। कोई भी आइटम जो आपके अकाउंट्स में है, यू कैन टेक दैट एनी आइटम। लेट से रॉ मटेरियल की बजाय आप लेबर ले लीजिए। लेबर में पहले 2 लाख रुपए लग रहे थे, अब 4 लाख रुपए लग रहे हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है। व्हाट आई एम आस्किंग यू इज जस्ट आप खुद ये सोचिए कि एक कंपनी के 2 साल के फाइनल अकाउंट्स में सिर्फ एक आइटम की बात कर रही हूँ समझाने के लिए, लेबर की, जिसमें एक साल आपने 2 लाख रुपए खर्च किए, दूसरे साल आपने 4 लाख रुपए खर्च किए, बिल्कुल डबल 100% इंक्रीज हो गया। क्या सिर्फ फाइनल अकाउंट्स को देखकर आप रीजन बता सकते हो कि ये जो 2 लाख का इंक्रीज हुआ है एक्सपेंडिचर में लेबर कॉस्ट में, आई एम जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल, तो लेबर कॉस्ट में ये 2 लाख रुपए का इंक्रीज किस वजह से हुआ है? आप सिर्फ फाइनल अकाउंट्स देखकर ये बता सकते हो कि मैम पिछले साल 2 लाख रुपए का लेबर कॉस्ट का एक्सपेंस था, इस बार जो लेबर कॉस्ट है मेरी वो 4 लाख रुपए है। रीजन यू कैन नॉट टेल, क्योंकि रीजन फाइनल अकाउंट्स में होता ही नहीं है। यू कैन जस्ट पुट योर concentration on the figures only and just tell the difference if any, प्लस माइनस जो भी है। तो आप सिर्फ ये बता सकते हो कि पिछले साल मैंने 2 लाख रुपए दिए थे, इस बार 4 लाख रुपए दिए, समझ नहीं आ रहा ये क्यों है। अब मैं आपसे रीजन पूछूं तो सिर्फ फाइनल अकाउंट्स के इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, यू डोंट हैव एनी अदर डिटेल्स, तो आप सिर्फ तुक्के लगाओगे। हो सकता है हमने लेबर ज़्यादा रख ली, वन ऑफ द पॉसिबल रीजंस मे बी दिस, कि भाई मैं ये बोलूँ कि मैंने पहले लेबर कम रखी हुई थी, अब मैं ओवर टाइम करा रही हूँ, या मैंने एक्सपेंशन कर दिया बिजनेस का, मेरे को लेबर की ज़्यादा ज़रूरत है, लेबर मेरे पास ज़्यादा है, आई एम हैविंग मोर लेबर, तो इसकी वजह से लेबर के पेमेंट जो लेबर कॉस्ट है वो ज़्यादा हो गई, 2 की जगह 4 लाख हो गई, जस्टिफाइड, बट दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट देयर इन द फाइनल अकाउंट्स। द सेकेंड पॉसिबल रीजन में भी कि पहले लेबर सस्ती मिल जाती थी, अब वेज रेट बढ़ गए हैं, मुझे उनको बढ़े हुए वेज रेट के हिसाब से पैसे देने पड़ रहे हैं टू द सेम वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं बढ़े हैं, पैसे बढ़ गए उनके, जिसकी वजह से लेबर कॉस्ट अब महंगी मिल रही है। पहले 100 रुपये में मिल रही थी, अब 200 रुपये में मिल रही है, तो मुझे अब पहले 200 रुपये 100 रुपये के हिसाब से पेमेंट हो रही थी, अब 200 के हिसाब से पेमेंट कर रही हूँ, तो जाहिर बात है डबल हो गई है, तो मुझे जो कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है सेम नंबर ऑफ लेबर्स के, सेम नंबर ऑफ वर्कर्स के साथ में, आई एम जस्ट मेकिंग डबल पेमेंट, देना तो पड़ ही रहा है। दैट मे बी द पॉसिबल रीजन। ये जो कंटेंट है, जो ये आपका रीजन है, दिस इज नॉट देयर in the final accounts, and this is the only reason we have this another accounting process, which is the cost accounting, where we have the focus on each and every cost, or each and every expense we incur in the organization.
now it's okay, cost is basically expenditure to acquire something. आपने कोई चीज परचेज की या कोई सर्विसेज रेंडर करी, कहीं आप गए और आपने उनकी सर्विसेज ली, आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया और उसके बदले में आपने पैसे दिए, आपने खर्च करी मार्केट एक शेयर पैसे लगाए ओवरऑल में पर यूनिट की कैलकुलेशंस जो की हैं उसके हिसाब से मेरी कैलकुलेशन में आता है कि 300 रुपए मैंने वो शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने में खर्चा उठाया है। अब आप जब मार्केट में बेचोगे तो मार्केट में 300 रुपए से ज्यादा पे बेचोगे क्योंकि प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो। प्रॉफिट अर्न करने के लिए यू हैव टू सेल दैट पर्टिकुलर शर्ट for more than 300 रुपीज। 300 रुपए से ज्यादा पे जितने पे भी बेचोगे, लेट से 350 पे बेचा, 350 पे बेचोगे तो 50 रुपए का प्रॉफिट है, 400 पे बेचा तो 100 रुपए का प्रॉफिट है। द अमाउंट विच इज हायर देन 300 that will be your profit you are earning। तो आपने कॉस्ट बियर की है, जो खर्चे उठाए हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो आपके लिए कॉस्ट होती है। ये कॉस्ट होगी कंपनी के लिए, और जब वो मार्केट में उसको बेचेगी, अब 300 रुपए पे मैंने एक शर्ट बनाई तो कंपनी के लिए क्या है, दैट इज द कॉस्ट और द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट। उसको मार्केट में उन्होंने बेचा 1000 रुपए पे, 700 रुपए का प्रॉफिट हो गया। वो मैंने परचेज की 1000 रुपीज पे। तो एज कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू इफ आई टॉक ऑफ द कॉस्ट, तो मेरे लिए उसकी कॉस्ट कितनी है, 1000 रुपए। मुझे 300 रुपए से कोई मतलब नहीं है, मैंने उसको परचेज किया है 1000 रुपए पे, तो मेरे लिए उसकी कॉस्ट 1000 रुपए है। कंपनी ने उसको बनाया है 300 रुपए खर्चा करके, बेचा चाहे उसने कितने पे भी, बाकी तो प्रॉफिट है उसके लिए। तो कंपनी के लिए cost of manufacturing will be the cost incurred, and the cost to the purchaser will be the selling price at which he has acquired the product from the market। I hope now it's clear to you, Saurav, and everyone else in the class। Pawan has asked me that only material, labor and expenses and cost accounting are being concerned। पवन, इन जनरलाइज अगर मैं अब इसको कर दूं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस कॉस्ट अकाउंटिंग में यही सब होते हैं। जो आपने एक्सपेंसेस की टर्म यूज की है, एक्सपेंसेस अपने आप में बहुत वाइडर टर्म है कॉस्ट अकाउंटिंग में। मटेरियल, लेबर प्लस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को अगर मैं बाइफिकेट कर दूं तो दे हैव been classified as direct expenses and indirect expenses, and in cost accounting all the expenses, चाहे वो डायरेक्ट हैं चाहे वो इनडायरेक्ट है, सब इंक्लूसिव होते हैं, मगर सिर्फ उसकी कैलकुलेशन करने का एक प्रोसेस होता है। अगर उसको कंप्राइज कर दूं तो आपकी स्टेटमेंट ठीक है कि इसे मटेरियल, लेबर या बाकी सारे एक्सपेंसेस की ही कंसिडरेशन होती है कॉस्ट अकाउंटिंग में, उसके अलावा कुछ नहीं होती है। Arihant said that so cost includes everything from production till final goods, or even further when providing services। Arihant, you have rightly quoted that when we talk of the cost accounting or the cost, it is basically the process which starts when you you start the manufacturing process,
जहां आपने पैसे से शुरू किया, पैसे से आपने रिसोर्सेज को अवेलेबल किया कंपनी में, so that you can manufacture the product or you can render services to other people. कस्टमर्स को सर्विसेज देना चाहते हैं, उसके लिए आपने फैसिलिटीज़ को अरेंज किया, तो पैसा लगाया होगा, इन्वेस्टमेंट की होगी, वहाँ से आपकी सारी की सारी कॉस्टिंग शुरू हो जाती है टिल द टाइम यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट। अगर मैं सिर्फ कॉस्ट की बात कर रही हूँ तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी वहाँ रुक जाएगी जहाँ आपने मैन्युफैक्चर कर लिया है प्रोडक्ट, क्योंकि उसके बाद उसको बेचूंगी तो मेरे लिए सेलिंग प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस और उस कॉस्ट को जो मैंने कैलकुलेट की है अभी, उन दोनों को कंपेयर करके मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। तो बेसिकली इन कॉस्ट अकाउंटिंग we have the focus mainly on the calculation of the total cost or the per unit cost of manufacturing a product or rendering a service. Final accounts में हमारा जो focus है वो किस पे है? We want to calculate the profitability or the loss we have incurred during the year. हमारा focus ये है कि हम ये calculate कर रहे हैं कि हमने कितना profit earn किया है। अब वो प्रॉफिट अर्न करा है वो हम कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं? जितना पैसा मेरे पास आया इन टर्म्स ऑफ सेल्स रेवेन्यू और अदर काइंड ऑफ इनकम, और जितना पैसा मैंने खर्चा किया, एक्सपेंसेस थे, कॉस्ट थी जो मैंने इनकर की, उनको कंपेयर कर रहे हैं इन टी फॉर्म, जहां हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम ये तो कर रहे हैं, इनकम एक्सपेंसेस को आपस में कंपैरिजन कर रहे हैं और उससे ही हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है या कितना हमें नुकसान हुआ है, और उसके बेसिस पर हम आगे की कैलकुलेशंस करके कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी या फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं। बैलेंस शीट से हम फाइनेंशियल पोजीशन देख लेते हैं। तो अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग वो पार्ट है जो फाइनल अकाउंट्स से बेसिकली पहले हो रहा है, जहां हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हमने कंपनी में खर्चा कितना किया है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो अगर मैं स्टेप बाय स्टेप की बात करूं तो फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले मुझे ये तो पता होना चाहिए मैंने खर्चा कितना किया है। मैं फाइनल अकाउंट्स में अगर एक एंट्री हम करके दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सब कहाँ से आ रहे हैं? वो सब यहीं से तो आ रहे हैं, कॉस्टिंग से। तो बेसिकली ये साइमल्टेनियसली आपके दोनों अकाउंटिंग प्रोसेसेस चलते रहते हैं, जहाँ से आप सारे के सारे अकाउंट्स को प्रिपेयर करके प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि फाइनल अकाउंट्स में आपके पास कॉस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, आपको सिर्फ फाइनल फिगर्स पता होती हैं कि मटेरियल पे मैंने टोटल कितना पैसा खर्च किया है, लेबर पे कितना खर्च किया है, रेंट कितना दिया है, लाइट के लिए कितना दिया है, पावर के लिए कितना दिया है, मगर उसकी माइन्यूट डिटेल हमें कॉस्ट अकाउंटिंग से पता चलती है। I hope till now it's clear. Karthik, you have asked me कि cost accounting is only used in production side only. देखो कंपनीज के हिसाब से अगर बात करोगे तो कंपनी या तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो सर्विसेज प्रोवाइड करे चाहे मैन्युफैक्चरिंग करे, कंपनी कॉस्ट कैलकुलेट करेगी, क्योंकि अगर कंपनी को ये पता ही नहीं होगा कि वो प्रोडक्ट कितने में बना पा रही है, तो क्या आपको लगता है कंपनी उसका सही से सेलिंग प्राइस सेट कर पाएगी? आज मैं अगर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लेके बैठी हूँ जहाँ मैं पेन बना रही हूँ, मान लीजिए पेन 5 रुपए का भी बनता है, 2 रुपए का भी बन जाएगा, 50 रुपए का भी बनता है, 1000 रुपए का भी बनता है। अब मैंने अगर एक पेन मैन्युफैक्चर किया, उसकी जो कॉस्ट मैंने इनकर की, लेट से वो 200 रुपए एक पेन को बनाने में मेरा खर्चा था। तो अगर मुझे ये खर्चा पता ही नहीं होगा कि 200 रुपए मेरे खुद के लगे हैं उसको बनाने में, हाउ विल आई बी एबल टू प्रॉपरली कोट इट्स सेलिंग प्राइस? मुझे समझ ही नहीं आएगा, मैं कुछ भी रैंडम रख सकती हूँ, और हो सकता है कि मुझे पता ना होने की वजह से मैं उसका प्राइस ही 150 रुपये रख दूँ, तो मुझे तो नुकसान है। मुझे ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि मैंने एक्चुअली खुद कितना पैसा इनकर किया है उस पेन को बनाने के लिए, और उसके बाद मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए, तभी मैं सही से उसका सेलिंग प्राइस मार्केट में कोट कर पाऊंगी। तो
कॉस्ट अकाउंटिंग का एक जो मेन एडवांटेज था, जो अभी मैंने आपको बताया था, वो था कॉस्ट रिडक्शन। सारी माइन्यूट डिटेल्स आपको कॉस्ट से रिलेटेड पता थी, तो आप उसकी वेस्टेज रोक सकते हो। अगर पता ही नहीं है तो रोक नहीं पाओगे, लेकिन रोक सकते हो जब आपको सारी माइन्यूट डिटेल पता है। दूसरा एडवांटेज कॉस्ट अकाउंटिंग का ये होता है कि क्योंकि हमें पूरा पता है कि हमने कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो हम दे रहे हैं उसके लिए खर्चा खुद कितना बियर किया है, वो तो मुझे रिकवर करना ही है, उसके अलावा और लेना है, तभी तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो वो मुझे सही से पता होने के लिए मैं कॉस्ट टेक्निक पे जा रही हूँ। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, वो आपका दूसरा जो मोटिव है, दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है बेसिकली, वो ये है कि कंपनीज सेलिंग प्राइस जब फिक्स करती है, तो क्योंकि कॉस्टिंग टेक्निक्स कंपनीज यूज करती हैं, तो इट इज इजी फॉर द कंपनीज टू कोट or to set the selling price properly. This is one of the major advantage of cost accounting to the companies. So it's basically used by the internal management only. मैं अगर किसी कंपनी में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं शेयर होल्डर तो इन्वेस्ट कर सकती हूँ, मगर कंपनी कितना खर्चा उठा रही है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इट्स ऑफ नो यूज टू मी। मेरे पर्पस की वो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, ना वो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वो कंपनी की इंटरनल पॉलिसीज हैं, इंटरनल सारी अकाउंटिंग है, इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग एक इंटीग्रल पार्ट हो जाता है, जहां कंपनी माइन्यूट डिटेल्स कॉस्ट से रिलेटेड, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कैलकुलेशंस करती है, सो दैट द कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड, द वेस्टेज of the expenses can be minimized. You may have the optimum utilization of resources. You can easily set the selling price at which the product should be sold or the services should be rendered to the customers in the market. तो ये आपके कुछ एडवांटेजेस इस थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से आए हैं निकल कर। आई होप टिल नाउ इट्स क्लियर टू एवरीवन। वन और टू स्टूडेंट्स दे हैव आस्क्ड मी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कब से होंगे। लेट मी हैव वन और टू लेक्चर्स थियोरेटिकल पोर्शन एंड देन वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। Okay, one of the students have asked me, ma'am, cost is considered only market price of anything or purchasing amount of that on that time. Okay, one of you has quoted that the cost is considered only the market price of anything or purchasing amount of that time. It's basically from the point of view of the purchaser only. अगर मैं ये कहूँ कि कॉस्ट मार्केट प्राइस है किसी भी चीज़ का जिस पे हम परचेज कर सकते हैं, वो एंगल है सिर्फ परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए मुझे एक पेन परचेज करना है अपने यूज़ के लिए, आई एम द अल्टीमेट कंज्यूमर। मैं मार्केट में गई, मार्केट में 2 रुपये से लेके 2 लाख रुपए तक के पेन अवेलेबल हैं। मैं जो भी पेन परचेज करूँगी, सेलिंग प्राइस होगा मार्केट का, और यू कैन से मार्केट प्राइस एट दैट पर्टिकुलर टाइम एट विच द सेलर इज सेलिंग इट ऑन इन द मार्केट। मैंने वो परचेज किया 150 रुपये पे पेन, तो वो मेरे लिए जो कॉस्ट है, मेरे लिए कॉस्ट 150 रुपये है फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। बट हेयर वी आर नॉट फोकस्ड on the view of the customer. We have the focus on the organization. We are focused on the cost of production. The cost of production is different thing, and cost of or the selling price or the market price is different thing. Cost of production is from the point of view of the manufacturer. आपकी कंपनी एक पेन बना रही है, वो पेन आपने 100 रुपये पे बनाया, मुझे वो मार्केट में 150 रुपये पे मिला, किसने कितना प्रॉफिट कमाया, आई डोंट बॉदर। मेरे लिए अगर मैं कस्टमर के हिसाब से बात करूँ तो वो 150 रुपये कॉस्ट थी, बट इन कॉस्ट अकाउंटिंग आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। मेरा फोकस है उस 100 रुपये पे। जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है प्रोडक्ट, उसने वो कितने में बनाया है, दिस इज द मेन फोकस इन कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग अगर मैं एज कस्टमर बात करूँ तो मैं तो कोई भी अकाउंट्स नहीं बनाती। अकाउंट्स बनाते हैं कंपनीज, अकाउंट्स बनाते हैं क्योंकि वो प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना चाहते हैं। तो जो भी कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, अब वो रॉ मटेरियल भी लेंगे, वो लेबर भी लेंगे, वो बाकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बियर करेंगे। तो बेसिकली इन कॉस्ट अकाउंटिंग वी आर टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट और रेंडरिंग सम सर्विसेज। तो वो खुद वो सर्विसेज देने के लिए या प्रोडक्ट बनाने में कितना पैसा इनकर कर रही है, दैट इज बेसिकली द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। जहां कंपनी खुद ये कैलकुलेशंस कर रही है कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है मार्केट में बेचने के लिए, अभी सेलिंग प्राइस तक तो मैं पहुंची ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ वो मैन्युफैक्चर कर रही हूँ कि अब ये मैन्युफैक्चर करने में मैंने कितने पैसे खर्च किए हैं। अब मान लीजिए अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और आप कैलकुलेशंस कर रहे हो स्टार्टिंग से, और आपको पता चलता है कि 1000 रुपये आपको एक यूनिट बनाने में लगे हैं, देन यू वुड बी एबल टू कोट इट्स सेलिंग प्राइस। तभी तो आप ये बता पाओगे कि मैं कितने में बेचूँ। आपने एक प्रोसेस शुरू किया, प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, अभी आपको पता ही नहीं कि कितना खर्चा हुआ, क्योंकि खर्चा हो रहा है, अभी तक एक भी यूनिट बनी नहीं। मैं आपके पास एज कस्टमर आ जाऊँ
कि जी मुझे ये वाला बताओ कि कितने में दोगे आप प्रोडक्ट, हाउ विल यू कोट द प्राइस, आपको खुद ही नहीं पता आपका कितना पैसा खर्च होएगा। तो वी आर फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। जब प्रोडक्ट बन रहा है, सर्विसेज रेंडर करने के लिए रेडी हैं, आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये देख रहे हो कि मुझे कितना पैसा मैंने खुद इनकर किया है इस प्रोडक्ट या सर्विसेज को रेडी करने के लिए, ताकि ये मैं सर्विसेज या प्रोडक्ट कस्टमर को दे सकूं। तो अब मुझे पता है कि मैंने कितना इनकर किया खर्चा, उसके हिसाब से मैं सेलिंग प्राइस को कोट करके उसको आगे दे दूंगी। आई होप इट्स क्लियर। तो बेसिकली वी हैव focus on the calculation of the cost of manufacturing the product, or if we are rendering some services, what cost total expenditure will be incurring from the point of view of the organization. Okay, 2013 की one of the student has asked me कि चल जाएगी कि नहीं. I would not recommend too old edition, because उसमें सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हैं, बट इवन देन आई प्रेफर कि आप थोड़ा अगर लेटेस्ट एडिशंस की या लास्ट के 2 या 3 साल की बुक्स अगर आप रेफर कर पाओ तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, अरिहंत, यू हैव आस्क्ड मी आर आफ्टर सर्विसेज कॉस्ट इंक्लूडेड? ओके, when we are talking of the cost accounting concept, after sale services costs are basically not included in this. This is basically we are talking of the cost of sales. तो हम जो भी कॉस्ट हमने सेल्स के टाइम तक इनकर की हुई है, वी आर टॉकिंग ऑफ दैट ओनली इन कॉस्ट अकाउंटिंग। आफ्टर सेल सर्विसेज में है कि हमने सेल्स कर दी हैं, प्रोडक्ट बेच चुके हैं, और उसके बाद अगर कस्टमर्स को कोई सर्विसेज चाहिए तो वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगेन दे आर चार्जेबल, उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग प्रोसेस है। कॉस्ट अकाउंटिंग में यू कैन कंसिडर दैट, बट लेकिन हम जब कॉस्ट शीट बनाते हैं, we don't include after sale services, we just calculate the cost of production or cost of sales, कि हम जब बेच रहे हैं उस टाइम पर हमारी कितनी कॉस्ट हमने इनकर की है, so that we can have the proper setting of the selling price at which it should be sold in the market to have एक reasonable amount profit का earn करने के लिए। तो इसलिए आफ्टर सेल सर्विसेज जो होती हैं, दे आर द कॉस्ट, अगर कंपनी उसमें आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए कॉस्ट बेयर करती है, बट दे आर नॉट देयर इन द पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट में नहीं आती है वो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपने जैसे ही प्रोडक्ट को बना लिया है, प्रोडक्ट आपके पास रेडी है, तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है। फाइनल प्रोडक्ट आपके पास बन गया है, फाइनल प्रोडक्ट के लिए आप रॉ मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस इनकर करने थे, वहाँ से शुरू हुआ, और जैसे ही आपके पास वो फाइनल प्रोडक्ट आ गया, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई, आपके पास वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स का, जिसमें सेल्स के एक्सपेंडिचर्स, सेलिंग एक्सपेंसेस या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस, ये हम सब ऐड करते हैं, क्योंकि ये भी कंपनी खर्चे करती है। अगर एडवर्टाइजमेंट पे मैं पैसा खर्च कर रही हूँ तो किस लिए कर रही हूँ, कि लोगों को अवेयर कर रही हूँ कि मेरी कंपनी का ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, आप यूज़ कर सकते हो, टू प्रमोट सेल्स। तो वो एक हिस्सा है कॉस्ट का ही। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद उसमें वो ऐड किया जाता है, एंड देन यू हैव द कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन खत्म के बाद यू हैव अनदर कॉन्सेप्ट विच इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके कॉस्ट शीट में आते हैं, बट आफ्टर सेल सर्विसेज का कॉन्सेप्ट इसमें कॉस्ट शीट में नहीं आता है। अश्वनी हैज quoted मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस की इनडायरेक्ट ओवरहेड्स बोल सकते हैं। जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, विल जस्ट गो विद ऑल दीज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, बट अभी आपने पूछा है तो आई एम जस्ट मेकिंग इट क्लियर। हमारे जितने भी खर्चे हैं उसमें मेजॉरिटी जो हमारे क्लासिफिकेशन है वो क्या है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सारे एक्सपेंसेस आ गए। अब एक्सपेंसेस की बाइफिकेशन होती है दो, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। तो एक्सपेंसेस की जब हम बात करेंगे तो दे आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दे आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड व्हेन वी पर्टिकुलरली टॉक ऑफ द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दे आर द टर्म व्हिच इज यूज्ड इन अकाउंटिंग इज द ओवरहेड्स। तो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनके लिए हम टर्म्स यूज करते हैं ओवरहेड्स के, एंड दे अगेन हैव द क्लासिफिकेशन कि किस कैटेगरी में या किस लेवल पे हमने खर्चे किए हैं। We'll do all these in cost sheet. Deepshika, you have asked me for the best author. I cannot suggest one author. मैंने आपको 3 बताए हैं, और उसमें से भी अगर आपको एक ही बुक पढ़नी है तो then you can have the cost accounting by Dr. M.N. Arora. That would suffice if you go through that book. Okay, Prabhat, you have asked me to increase the speed of teaching because you have limited number of lectures. Even I do know that you have only 15 lectures and the course is vast, and it's not possible to cover all the whole syllabus. It's not possible. Even then, I'll try to cover as much as
सिलेबस एज आई कैन, बट स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर्स क्योंकि मुझे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट कराना है तो यू मे फाइंड कि वो थोड़ा सा स्पीड कम है, बट व्हेन वी स्टार्ट द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स then the speed will be there. Don't worry. But no doubt, it's not possible for us to teach you the whole syllabus in 15 lectures. फिर भी मेरी कोशिश यही है कि मैं पूरे जितना मैक्सिमम खींच सकती हूँ उतना खींच लूँ. एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो वाले क्वेश्चंस अभी ना पूछें जो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, क्योंकि मैं अगर इस तरह से आपके क्वेरीज को सॉर्ट आउट करना शुरू करूँगी ना जो मैंने अभी पढ़ाया भी नहीं है, दैट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द कंसेप्ट्स. 2 साल के पहले का स्टडी मटेरियल आपका चल जाएगा, बुक्स भी चल जाएंगी. Okay, now let's continue. Now coming to the cost accounting, which I just we will discussing. Costing is basically the technique and processing of ascertaining cost. I hope now it's clear. Cost accounting is the branch of accounting where we have the process where we classify, accumulate, assigning and controlling the cost. तो cost accounting एक वो branch है accounting की जिसमें हम कॉस्ट से रिलेटेड सारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसका जो डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, वो सब इकट्ठा करके और कॉस्ट के कंट्रोल हम कैसे कर पाएँ, उस पर हमारा एक फोकस होता है. तो मेन फोकस, वन ऑफ द मेजर फोकस इन कॉस्ट अकाउंटिंग इज दैट यू ट्राई टू कंट्रोल और रिड्यूस द कॉस्ट. ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी. नाउ CIMA इज चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट. इट्स इन लंडन, एक इंस्टीट्यूट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का है लंदन में. दे हैव डिफाइंड कॉस्ट अकाउंटिंग एज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट्स, standard cost and actual cost of operations, processes, activities or products, and the analysis of variance, profitability or the social use of funds. Now what does that mean? Cost accounting का basic आपको मैं बता चुकी हूँ, जिसमें आप कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो एक्चुअल कि हमने एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए या एक सर्विसेज को रेंडर करने के लिए कितना खर्चा उठाया है. But whenever you start any business, you have the budgets also, you have the estimated figures also. कि हमें ये प्रोडक्ट बनाना है या ये सर्विसेज हमें देनी है, उसके लिए हमें इतना खर्चा करना पड़ेगा, इतनी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी. तो हमारे पास 2 फिगर्स होती हैं. When we are running any business, we have the standard cost जो हमने पहले से ही एस्टिमेट किया हुआ है in form of budgets और the project proposals कि इतना बजट होगा, इस बजट के हिसाब से इस चीज़ में इतना पैसा खर्च होगा, क्योंकि हम पैसे की ज़रूरत है तो हमें पैसा अरेंज करना पड़ेगा. उसके लिए हम बजट या स्टैंडर्ड कॉस्ट को पहले से ही एस्टिमेटेड फिगर्स अपने पास रखते हैं. इस चीज़ पे इतना पैसा, इस चीज़ पे इतना पैसा, सो दैट वी कैन अरेंज द कैपिटल व्हेन एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड. एक होता है एक्चुअल खर्चा कि मैंने इतना एक्चुअल खर्चा किया है. नाउ व्हाट हैपेंस इज यू हैव 2 फिगर्स, वन इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड द अनदर वन इज द एक्चुअल कॉस्ट. स्टैंडर्ड कॉस्ट इज द एस्टिमेटेड फिगर्स जो आपने पहले से ही एस्टिमेट की हुई थी. एक्चुअल वो हैं जो हमने एक्चुअली बियर की हैं, खर्चे उठाए हैं कोई भी काम करने के लिए. अब लास्ट में आप उन दोनों को कंपेयर करते हो. स्टैंडर्ड तो इतना था, स्टैंडर्ड के हिसाब से टोटल में 10 लाख रुपए खर्च होने चाहिए थे. अब एक्चुअल की जो फिगर आएगी दैट मे बी सेम एज 10 लाख रुपीज, दैट मे बी लेस, दैट मे बी मोर. अब मान लीजिए 10 लाख रुपए की आपने बजटेड फिगर या एस्टिमेटेड फिगर सोची थी कि मैं ये प्रोडक्ट बना के बेचूंगी तो मुझे 10 लाख रुपए का खर्चा उठाना पड़ेगा. एक्चुअल भी 10 लाख रुपए खर्चा हुआ, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, आप कंटिन्यू करते चले जाओगे. अब अगर वेरिएशन आई तो वेरिएशन कैन बी फेवरेबल, इट कैन बी एडवर्स. कैसे? 10 लाख रुपए का मैंने बजट बनाया हुआ था, खर्च हो गए 15 लाख रुपए. अब आपका दिमाग घूमेगा, 10 का बजट बनाया था, 15 लाख कैसे खर्च हो गए? 5 लाख का डिफरेंस बहुत होता है. पैसे की अगर प्रॉफिटेबिलिटी की कैलकुलेशन करोगे 1 रुपये का मायने रखता है, तो 5 लाख तो बहुत ज़्यादा है. अब आपका दिमाग खनकेगा और आप कैलकुलेशंस में देखोगे कि ये कहीं एरर कहाँ रहा, क्या गड़बड़ रही, आप कंपैरिजन करोगे. तो दिस सिचुएशन इज एडवर्स, जहाँ एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट. कि आपने सोचा तो 10 का था, खर्चा हुआ 15 का, तो 5 एक्स्ट्रा क्यों लगे? क्या वो 5 जो एक्स्ट्रा लगाए हैं, अब आप उसकी एनालिसिस करोगे, जस्टिफाइड हैं या नहीं है. जस्टिफाइड है तो आप अगली बार जो बजट बनाओगे वो 15 का ही बनाओगे, और अगर वो जस्टिफाइड नहीं है तो अगली बार के लिए आप रेमेडियल एक्शंस लोगे ये देखकर कि 5 लाख एक्स्ट्रा खर्च क्यों हुए, ताकि अगली बार अगर कोई वेस्टेज हुई थी तो वो आप रोक सको, क्योंकि खर्चा तो आपकी जेब से ही जा रहा है ना. और अगर वो फेवरेबल हुआ कि स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने 10 की सोची थी और खर्चे आपके सिर्फ 8 के हुए, तो व्हाट विल हैपन, वो आपके फेवरेबल सिचुएशन में था. नेक्स्ट टाइम जो आप बजट बनाओगे वो 8 का ही बनाओगे. यार 8 में काम चल रहा है, मैं 10 का अरेंजमेंट करूँगी. तो दिस इज बेसिकली द होल प्रोसेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जहाँ हम एस्टिमेटेड कॉस्ट भी कैलकुलेट करते हैं बजट्स के फॉर्म्स में, फिर उसको एक्चुअल एक्सपेंसेस हम जब इनकर करते हैं तो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग करते हैं. उसके बाद उन दोनों फिगर्स को कंपेयर करते हैं,
उसकी फेवरेबल अनफेवरेबल सिचुएशन देखते हैं और उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली आगे फर्दर हम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टाइम पीरियड के लिए. दिस इज होल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग. Now, one of the author, Weldon, has defined cost accounting as classifying, recording, and appropriately allocating the expenditure to determine the cost of product or services, and for the presentation of suitably arranged data for purposes of control and guidance of management. It is basically he's saying that it's a mechanism or it's a technique where we have the classification, recording, and allocating the expenditure. अब allocation of expenditure का मतलब है कि जो हम प्रोडक्ट या सर्विसेज बना रहे हैं उसकी पूरी की पूरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स या अलग अलग डिविजन्स किए हैं विच वी डू इन कॉस्ट शीट. उनको अलग अलग प्रॉपर जगह पे एक्सपेंस कहाँ खर्च हुआ, किसके लिए खर्च हुआ, किस डिपार्टमेंट में खर्च हुआ, उसके हिसाब से प्रॉपरली उसको एलोकेट करना जाता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग में. कि आप जो भी खर्चे हैं आप रैंडम नहीं उठा के लिखे जा रहे हो, आप प्रॉपर्ली एलोकेट कर रहे हो कि कौन सा खर्चा किस कैटेगरी में आएगा. तो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंडिचर्स वेयर वी हैव टू प्रॉपर्ली एलोकेट द डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स व्हाइल व्हिच वी आर इनकरिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज. So this is the cost concept, cost accounting. It's when we talk of cost accounting and we talk of costing, the cost accounting is basically the basis or the information for ascertainment of cost. And once the information is made available, the costing can be carried out arithmetically. Cost accounting में आप एक information दे रहे हो और costing में आप उसको calculations कर रहे हो और आप पूरी statements properly बना रहे हो. This is the cost accounting and costing technique. Then coming to the objectives of cost accounting, we'll just quickly finish this objectives also. Now, when we talk about the main objectives, cost accounting is basically aiming at the systematic record of expenses. ये मैंने आपको बता दिया. उसके बाद जो हमने expenses को record किया है, it's analyzing all the expenses or the cost of each product. अगर कंपनी दो प्रोडक्ट या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट या सर्विसेज बना रही है तो कंपनी क्या करेगी, सिस्टमैटिकली सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेगी प्रोडक्ट वाइज. सारे प्रोडक्ट्स को इकट्ठा नहीं कर देगी, खिचड़ी नहीं बनाएगी. ईच एंड एवरी प्रोडक्ट विल बी रिकॉर्डेड सेपरेटली. हर प्रोडक्ट के लिए कॉस्ट या हर सर्विस के लिए कॉस्ट अलग से वो एस्टेन करके कैलकुलेशंस करती हैं. एंड दैट इन्फॉर्मेशन इंडिविजुअल प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए ईच इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी इट्स बीइंग यूज्ड बाय द मैनेजमेंट to have the proper allocation of cost, to have proper utilization of resources, to have the proper setting of selling price, so that they can have the maximum profit. क्योंकि ultimately target मेरा profit पर ही जा रहा है. जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है कॉस्ट अकाउंटिंग के वो कैटेगराइज अगर मैं कर दूं तो उसमें क्या है, द फर्स्ट वन इज दैट यू वांट्स टू एनालाइज एंड क्लासिफाई ऑल द एक्सपेंडिचर्स विद रेफरेंस टू द प्रोडक्शन कॉस्ट. जो भी मैं काम कर रही हूँ उसको मैं अलग अलग क्लासिफिकेशंस करके अलग अलग कैटेगरीज में डाल के उसको क्लासीफाई करके उसकी एनालिसिस कर रही हूँ. Then the second one is to arrive at the cost of production for each unit or process or department or service or job separately. तो जितने भी departments हैं उनकी अलग, अगर products बहुत सारे हैं तो अलग अलग product wise, in case you have different services तो services wise, you are just calculating the cost of production so that the total selling price of each product or the services can be set by the organization. The third objective is to indicate to the management about any inefficiencies or the wastage in terms of material, time or expenses, so that the remedial actions can be taken in due time. अगर कहीं पे भी इनएफिशिएंसी है, कहीं वेस्टेज है, लेबर खाली बैठी हुई है, पैसे तो आप दे ही रहे हो ना, तो लेबर अगर खाली बैठी और आपको पता चल जाए तो व्हाट विल यू डू, यू विल टेक सम रेमेडियल एक्शंस. या तो आप उसको समझाओगे कि भैया काम तो करना पड़ेगा, खाली नहीं बैठ सकते आप क्योंकि आपको पैसे दिए जा रहे हैं. और अदरवाइज अगर आप काम नहीं करना चाहते आप जाइए, आपकी जगह कहीं हम और रिप्लेसमेंट ले आएंगे, बिकॉज वी आर इनकरिंग कॉस्ट. कोई ऐसी लेबर है, मान लीजिए स्किल्ड लेबर नहीं है आपके पास, बाई चांस अनस्किल्ड वर्कर है और वो मटेरियल की कटिंग होनी है, अब मटेरियल काटने ही नहीं उसको आता है, वो वेस्ट करे जा रहा है, तो व्हाट विल यू डू, ईदर यू विल टीच हिम हाउ टू प्रॉपर्ली यूटिलाइज द मटेरियल, आप उसको ट्रेनिंग दोगे ताकि वो ढंग से काम करे, वेस्टेज ना करे, और फिर भी वो वेस्टेज कर रहा है तो आप उसकी जगह किसी और को लेकर आओगे. क्यों? क्योंकि लेबर को आप पैसे पूरे दे रहे हो, फिर वो आपका मटेरियल खराब कर रहा है, तो आप वो तो करना नहीं चाहते हो, आपको कंट्रोल करना है. तो इनडायरेक्टली कहाँ पे हर चीज़ का जिस्ट कहाँ आ रहा है, that the organization's focus is on the controlling of the cost. कंट्रोल कर लोगे कॉस्ट, जो खर्चे आपके हो रहे हैं उसकी वेस्टेज अगर रोक दोगे तो जाहिर बात है दैट विल हैव द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन दी प्रॉफिटेबिलिटी. तो घूम फिर के सारी चीज़ें प्रॉफिट पे आ जाती हैं. Then the next one is to provide the data for the calculation of profit and loss and balance sheet which we prepare in the final accounts. तो उसके लिए आपको डेटा मिल रहा है. तो आपने अगर कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक यूज़ की हुई है, you are calculating the total cost of production and you have different expenses in totality. आप किस चीज़ में कितना खर्चा किया है, कहाँ पे आपका कितने expenses हुए, तो that data is to be transferred in the final accounts.
तो जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएल एंड अकाउंट में, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप कॉस्ट अकाउंटिंग से उठा सकते हो क्योंकि आपको टोटल में चाहिए अलग अलग, आपने वहाँ से ली और आपने फाइनल अकाउंट्स में डाल दी, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो आपको हेल्प करेगा प्रॉफिट के फिगर कैलकुलेट करने के लिए. Next one is to reveal the sources of economies in production having regard to methods. You have different type of equipments, layout, designs, and the daily, weekly, monthly or quarterly information may be required to have the prompt and constructive actions. तो इसमें basically क्या है कि जो हमारे प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में यू मे हैव डिफरेंट टेक्निक्स, you may have different equipments, you may have different machines which are being used to produce manufacture a product. तो उसमें जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उसमें आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे कैसे जाओगे कि आपकी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाए और आपका आउटपुट मैक्सिमम है, तो वो आपको हेल्प होती है कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स की वजह से. देन यू हैव टू प्रोवाइड द एक्चुअल फिगर्स ऑफ कॉस्ट फॉर कंपैरिजन विद एस्टिमेट्स. आपने जो मैंने आपको बताया कि कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक में सबसे पहले आपके पास बजटेड फिगर्स भी हैं, एस्टिमेट्स भी हैं, और फिर जब आप काम करना शुरू कर देते हो सारे आपके एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन यू हैव द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो, तो वो एक्चुअल खर्चा है. तो एक आपके पास एस्टिमेटेड फिगर्स थी, एक आपके पास एक्चुअल है, एंड यू कैन हैव द कंपैरिजन बिटवीन दीज टू फिगर्स सो दैट यू कैन analyze the figures and take the proper actions if it is required, and it also helps in price fixing policies. आपको पता है कि कितना खर्चा उठाया है तो you can set the selling price properly. Next one is to present comparative cost data for different time periods and various volumes of output. आपके पास अगर अलग अलग टाइम पीरियड के कंपैरेटिव अगर आपके पास कॉस्ट डेटा है तो आप अलग अलग साल के अलग अलग वॉल्यूम्स के हिसाब से आप कॉस्ट को कंपेयर कंपैरिजन कर सकते हो. और अगर दो टाइम या कर सकते हो कि ये वो पूरी रिकॉर्ड करने की it is required to have the profit and loss account. अगर आपको interim purpose है तो easily it can be prepared and that and you can provide the basis for production planning and unnecessary wastage. Next is the importance of cost accounting, and I hope the lecture was clear to you. Different you have pattern when we prepare cost sheet. We will do most probably I'll try कि वो मैं आपको next class में, अगर next class में नहीं भी होता है तो I'll try कि वो cost sheet, then that would be clear. Talking of the total cost in totality. I am not clear what actually your question is. इसके अलावा भी और कैटेगराइजेशंस होती हैं इन आवर नेक्स्ट क्लास. प्रैक्टिकल वेडनेसडे itself, otherwise okay, I hope you enjoyed the lecture. Now see you all on Tuesday.